लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे दोनों मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को नीचे गिरा सकते हैं। ट्रंप ने भारत के हाई टैरिफ पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को भी निशाने पर लिया और चेतावनी दी कि वो खतरनाक जोन में एंटर कर रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति में नया तनाव पैदा कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन भारत हमारे साथ उतना ट्रेड नहीं करता जितना करना चाहिए। ट्रंप का आरोप है कि भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को नुकसान होता है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। ये बात सभी जानते हैं, केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? टैरिफ इशू पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत गंभीर मामला है। हो सकता है ये एक मोल भाव करने की रणनीति हो, क्योंकि बातचीत अभी जारी है। Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage, because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our mind. प्रियंका गांधी ने कहा कि सबने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है। उन्होंने टैरिफ के बारे में बात की और ये भी कहा कि उनके कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकी। सरकार को इसका जवाब देना होगा। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है वह देश हित में नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़े रखा,
इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लेते। खालिस्तान नहीं बनने दिया, मोदी जी को कोई जिक्र नहीं। ये जो तनाव बना दिया इन्होंने, विपक्ष को दुश्मन मानते ही। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष कोई हो और सत्ता पार्टी कोई हो, वो कभी भी दुश्मन नहीं होते। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? पक्ष का महत्व तभी है तब आप विपक्ष भी वहाँ। ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे। तो ये तमाम बातें इस देश में चल रही है जो उचित नहीं है। हम चाहते हैं पूरा मुल्क, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम में घटना हुई थी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था हम आपके साथ हैं। कितना अच्छा माहौल बना था, पूरे देश को अच्छा लगा कि पहली बार पक्ष विपक्ष सब एक होकर के बात करते हैं कैसे आतंकियों का मुकाबला करें, नेस्त नाबूद करें पाकिस्तान से आतंकवादियों को। ये माहौल बन गया था। माहौल किसी ने तोड़ा, राजनीति होने लगी उसके अंदर, तो बहस हो रही है। हम उसके अंदर देख रहे हैं, आप लोग इनके कुछ जवाब देने के लिए इनमें कोई तथ्य नहीं है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही है, अखिलेश बोला है, गोगोई बोले हैं, कोई जवाब दे सकते हैं इनके? तो ये स्थिति बना गई। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सीज फायर को लेकर दिए जा रहे लगातार बयानों और प्रधानमंत्री मोदी के इन स्टेटमेंट्स पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर भी टिप्पणी की। 29 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट ट्रंप को लेकर नहीं आया। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कल मौका था उनके लिए। कल जब राहुल गांधी जी ने बात पूछी जवाब वाली, उनके पास में मौका था, एक बहाना भी था कि भाई नेता परिवार पूछ रहा मुझे ट्रंप के बारे में, ये मेरे लिए अच्छा अवसर है, मैं इसका जवाब दे दूँ। उस पर वो कुछ बोल नहीं पाए, बात को टाल दिया उन्होंने। तो ये तो रहस्य बना हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट 24 बार 25 बार बोल रहा, बार 29 बार हो गया। तो 29 बार ऐसा ही किस्सा पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार से बार बार एक मुद्दे को उठा रहा है और दोस्त होने का दावा करते हैं कि अपने दोस्त हैं। ये तो वही बता सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। स्कूलों की हालत को लेकर मदन दिलावर कह रहे हैं कि जेब से ठीक नहीं करा सकते। चलो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। मीडिया से बातचीत में खेड़ा ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला पंचायती राज विभाग में हुआ है। इसके बाद शिक्षा, शहरी विकास और कृषि विभाग में भी घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के मिड डे मील तक को नहीं छोड़ा गया, उनके खाने का पैसा तक चुरा लिया गया। पवन खेड़ा ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की लूट हुई, जिससे कई अच्छे काम हो सकते थे, लेकिन यह पैसा बट गया और चोरी हो गया। जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़ उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 करोड़, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बंट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे हैं। ये वो लोग हैं। मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है इनको? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दें, कितनी चोरी कर लें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में चुनाव आयोग और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम सभी जनता के मताधिकार से चुनकर आते हैं, लेकिन आज जनता का वोट ही चोरी हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मताधिकार की चोरी नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में लोकतंत्र और संसद की परंपरा दोनों खत्म हो जाएंगे। कि लोकतंत्र में हम सब चुन के आते हैं और वो जिस आधार पर हम चुन के आते हैं वो है लोगों का वोट देने का अधिकार। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लोगों का वोट छीना जा रहा है। भारत के लोगों का वोट आज चोरी हो रहा है। उस चोरी को अगर हम बंद नहीं करेंगे तो शायद कल को जाके ये लोकतंत्र नहीं रहेगा और सदन की परंपरा खत्म हो जाएगी। सरकार ये आश्वासन देती है कि वो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन आज तक वोट चोरी पर किस दिन सदन के अंदर चर्चा होगी वे तारीख देने में असफल रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मानती तब तक ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान कि एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी की कोई जाति या धर्म नहीं होता। देखिए, टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है। मैं आपको पहली बार बोलता हूँ, ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती। पाकिस्तान के लोग कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट कहते हैं, हिंदू टेररिस्ट। हमें मानने को तैयार नहीं है और उसका भारत सरकार ने उस बारे में पाकिस्तान को कहना चाहिए वो हमारा अधिकारी है, हमारा नागरिक है और उनको छुड़ाना चाहिए। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि जिनके खिलाफ जांच होती है उसके पीछे कोई ठोस आधार होना चाहिए। मुझे बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि वो एक सन्यासी जीवन जी रही थीं, लेकिन उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.